Hello students. So we'll continue with the CBSE board paper term 1, and already we have completed the section A portion in our first video. Now we'll continue with the other sections, but first we will do the section C. Okay, so this is the section C, and remember this thing, this is the very important question. Okay, this is very important question, remember this. ठीक है, तो चलिए देखें. तो क्वेश्चन सेज, so this section consists of 6 questions, like 50 to 55 attempts any 5 questions. Okay, this is a case study based question, और ये इसी तरीके से आएगा इस बार भी बोर्ड में. So like but ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, it may be, हो भी सकता है, और like you have to write the statement. Okay, so the question is, Nisha, an intern in ABC Private Limited, is developing a project using the CSV module in Python. So the question is on CSV module. Okay, she has partially developed the code as follows, leaving out the statements about which she is not very confident. The code also contains errors in a certain statements. Help her in completing the code to read the desired CSV file named employee.csv. तो अब आपको यहाँ से like you have to note down the things. Like first is that we are working on a CSV file. So that means the CSV module should be included. Okay, we have to import the CSV module. अब like आप फाइल के एक्सटेंशन से भी पता लगा सकते हैं कि फाइल कौन किस टाइप की है. तो इट्स अ CSV format file. Okay, so the content of the file is like 3 attributes are there: employee number, employee name, and department. So these are the record which is already stored in a CSV file. ठीक है, अच्छा, तो अब हमें इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है. ओके, तो ऑप्शंस आर गिवन. सो फर्स्ट इज, अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी यहाँ पे भी ब्लैंक आ जाता है तो इंपोर्ट के साथ लाइक वी आर वर्किंग ऑन द CSV मॉड्यूल लाइक और CSV फाइल, दैट मीन्स CSV मॉड्यूल शुड बी इंपोर्टेड. ओके, अब देखिए एक यहाँ पे मिस्टेक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक कमेंट गिवन है दैट इनकम्प्लीट कोड विद एरर्स. सो दैट मीन्स this code also contain errors, and as well as there are some incomplete statement. So the statement 1, so 50th question says Nisha gets an error for the module name used in statement 1. So statement 1 is this is statement 1. What should she write in place of CSV to import the correct module? So options are file, CSV, pickle, and again CSV. तो like हम जैसे जानते हैं in Python, whatever the module we have, almost all the modules are written in lower case. ठीक है, तो that means the answer is B, CSV. तो small में लिखेंगे, ये बात ध्यान रखें. ठीक है, अच्छा, now 51, identify the missing code for blank space in the line marked as statement 2 to open the mentioned file. तो अगर हम स्टेटमेंट 2 को देखें तो स्टेटमेंट 2 में इसमें विद के थ्रू हम वी आर जस्ट ओपनिंग द फाइल, और ओपन फंक्शन में लाइक 3 आर्ग्यूमेंट्स वी आर पासिंग हेयर. जनरली आपने जब बाइनरी फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, टेक्स्ट फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो इन ओपन फंक्शन विल पास ओनली 2 आर्ग्यूमेंट, बट इन CSV वी हैव टू पास द 3 arguments. The third one is the new line. अच्छा, this new line is optional. ठीक है ना, आप इसको skip भी कर सकते हैं इवन. तो फिर यहाँ पे क्या मिसिंग है? तो मिसिंग क्या है, जैसे अब आप जानते हैं जब भी हम ओपन यूज करते हैं तो फर्स्ट विल राइट द फाइल नेम, जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हैं वो फाइल नेम आएगा, एंड द सेकेंड इज द फाइल मोड. सेकेंड इज द फाइल मोड आएगा. ठीक है, so like we are opening the file in reading mode because she wants to read the content of the file,
as it is already given in the question, like the code to read the desired CSV file. So that means reading, we are doing the reading. Okay, so identify the missing statement. तो what will be the correct option? तो फाइल का नाम employee.csv है, तो we'll use this A option, employee.csv, and reading mode will be R. Okay, R भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाइनरी फाइल नहीं है, इट्स अ CSV फाइल. This RB will write when we are reading the binary file. Okay, चलिए नेक्स्ट देखिए 52. Now choose the function name that should be used in the line marked as statement 3. तो statement 3 is, this is our statement 3. तो statement 3 में like CSV dot. Now अब देखिए सबसे पहली चीज, we are calling a function with the help of CSV module name. So that means we are calling the module function which is defined in CSV file. तो like जैसे हम we are doing the reading operation, तो in CSV for reading operation we have a reader, okay, and for writing we have a writer. Two functions are there. तो options देखते हैं, तो reader file, read rows, writer, write rows. तो the answer is reader file. अच्छा, रीडर फाइल में एक बात और भी याद रखिएगा आप, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक ही आर्ग्यूमेंट दिया, दैट इज द फाइल ऑब्जेक्ट, वो तो हमें पास करना ही होता है. फाइल ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम एक चीज और पास करते हैं, दैट इज वन इज द फाइल ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज द डिलिमिटर. सेकंड इज द डिलिमिटर. तो बाय डिफॉल्ट वी नो दैट डिलिमिटर इज कॉमा. अगर आप चेंज करना चाहें तो वो हम चेंज कर सकते हैं, बट एक्चुअली इस फाइल में जो कंटेंट है वो कॉमा से ही है, तो इसलिए आप डिलिमिटर को यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, उसको बाय डिफॉल्ट कॉमा ही रहने देंगे. ठीक है, आंसर हमारा आएगा रीडर फाइल. ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए 53. नाउ सो द आंसर ऑफ 52 इज ए. 53 is Nisha gets an error in statement 4. What should she write to correct the statement? Okay, so 53 is this line. तो फॉर आर इन रेंज ई आर. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जब हम रीडर फंक्शन यूज करेंगे तो हमें सारा कंटेंट ई आर में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लाइंस. ठीक है, और यू वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. तो अब फॉर आर इन रेंज, तो रेंज नहीं लगेगा यहाँ पे, हम सिंपल क्या करेंगे, ई आर लगाएंगे, क्योंकि फॉर लूप लिस्ट पे ऑपरेशन करता है. हम डायरेक्ट ई आर में जो डेटा आ रहा है वो लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, जिस लिस्ट में हर एलिमेंट कौन बना है, एवरी लाइन बिकम द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट. देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को, मैंने क्या कहा है, जब हम रीडर, ये जो स्टेटमेंट है, जस्ट होल्ड डाउन, इसको इस कर देते हैं पहले. हाँ, जब भी हम यहाँ पे एक्चुअली हमने लिखा है रीडर फाइल, तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें लिस्ट रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न द लिस्ट. अब लिस्ट जो हमें मिलेगी, उस लिस्ट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमारे ये एलिमेंट्स बनेंगे सब. समझ गए बात, ये सब क्या होंगे, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. तो दैट मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ER list is E number, name and department. Second element will be E1 Roshan Sharma accounts. ठीक है ना, इस तरीके से होगा. तो इसमें फिर आंसर होगा हमारा निशा गेट्स. ओके ठीक है, तो सिंपल. देखिए ये तो आप देखो, आप बहुत इजी है, ये हो नहीं सकता इस तरीके से, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, वाइल हम यूज नहीं करेंगे, वाइल. ठीक है, तो द आंसर विल बी ए फॉर आर इन ER. Okay, got it? अच्छा, now 54th. Identify the suitable code for blank space in statement 5 to match every row's third property with accounts. Okay, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं. Okay, तो हम बेसिकली जो मेरे को लिस्ट मिली है, ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया, ER आ गया. ER में क्या है, ये पूरा लिस्ट है, मतलब ये नेस्टेड लिस्ट होगी एक तरीके से, वी कैन से दैट, है ना. तो ये हमें आर में क्या देगा, पहले आर में ये पूरा ये रिकॉर्ड देगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम पे क्या मिलेगा, हमें ये पूरा रो मिलेगी.
आर वेरिएबल में। आर क्या है? आर इज अ लूप वेरिएबल। ध्यान से सुनिए बातें सारी, क्या मैं कह रहा हूं। आर क्या है? हमारा लूप वेरिएबल है। ये क्या रिट्रीव करेगा? ये यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ई आर लिखा हुआ है ना। तो ये आर से क्या आएगा? इस ई आर का फर्स्ट एलिमेंट आएगा। और ई आर का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ई नंबर, नेम एंड डिपार्टमेंट। ओके, इसी तरीके से सेकंड एलिमेंट क्या होगा? E1 रोशन शर्मा एंड अकाउंट्स। तो हमें करना क्या है? हम उन रिकॉर्ड्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं जिनका डिपार्टमेंट क्या है? अकाउंट्स है। वी आर जस्ट चेकिंग द कंडीशन कि किसका डिपार्टमेंट अकाउंट्स है। तो अब जो आर में जो ये नेस्टेड लिस्ट आ रही है, मतलब वो जो लाइन जो आ रही है, उस लाइन में अकाउंट्स, क्योंकि वो जो लाइन है वो इटसेल्फ एक लिस्ट है, ठीक है, वो इटसेल्फ एक लिस्ट है। तो वो जो अकाउंट है मींस जो डिपार्टमेंट है वो किस इंडेक्स पे है? वो हमारा सेकंड इंडेक्स पे है, क्योंकि E1 जो होगा, ई नंबर, ये हमारा 0 इंडेक्स होगा, नेम हमारा 1 इंडेक्स होगा और डिपार्टमेंट हमारा 2 इंडेक्स होगा। ओके, दैट मीन्स यहां पे हम लिखेंगे R of 2 इज इक्वल टू अकाउंट्स। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? देखिए ई आर कुछ नहीं है, ई आर ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो पूरी लाइन दे देगा हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिस, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप? ओके, नाउ लास्ट इज आइडेंटिफाई द सुटेबल कोड फॉर ब्लैंक स्पेस। जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है स्टेटमेंट 6 में, टू डिस्प्ले एवरी एम्प्लॉय नेम्स एंड करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। ठीक है ना, उनका एम्प्लॉय नेम और करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। ठीक है, तो देखिए अगेन फिर से वही चीज। अच्छा, हम किन का प्रिंट कर रहे हैं? जिनका डिपार्टमेंट के अकाउंट्स है, हम उनको प्रिंट कर रहे हैं, है ना। तो नेम प्रिंट करना है और डिपार्टमेंट प्रिंट करना है। तो आर के किस इंडेक्स पे हमारा नेम है? 1 इंडेक्स पे है। और अकाउंट किस, डिपार्टमेंट किस इंडेक्स पे? 2 पे है। तो दैट मीन्स विल राइट R of 1 एंड R of 2। गॉट इट? तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा R of 1 नहीं होगा, C इज द आंसर। R of 1, R of 2। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, चलिए अब हम अपने सेक्शन बी पे आ जाते हैं वापस। तो सेक्शन बी को शुरू करते हैं। यस, so in section B, next question is, so Nitish has declared a tuple T in Python as following. तो ये tuple defined है. Now he wants to insert an element 40 after these 3 element of T so that the tuple may contain 10, 20, 30, 40. मतलब कि वो इस tuple में 40 को ऐड करना चाह रहा है। ठीक है ना, इस 40 को ऐड करना चाह रहा है। तो सबसे पहली चीज, अब आप एक बात जानते हैं कि जो हमारी टपल होती हैं, दे आर इम्यूटेबल। दैट मीन्स वी कैन नॉट परफॉर्म द अपडेशन ऑफ दिस टी वेरिएबल, बट हाँ, आई कैन रीअसाइन द वैल्यू इन टी वेरिएबल। रिमेंबर दिस थिंग, मैं रीअसाइन कर सकता हूं, बट उन्हीं एलिमेंट्स में मॉडिफिकेशन आई कैन नॉट परफॉर्म। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शेल नितिश राइट टू अकम्प्लिश द टास्क अबव टास्क। तो देखिए t इज इक्वल टू टी प्लस 40। देखिए ये t क्या है? टपल प्लस इंटीजर, नॉट पॉसिबल, दिस विल गिव्स एन एरर। नाउ ब्रैकेट ऑफ 40 लिखेंगे तो ये भी एक इंटीजर ही है, क्योंकि अगर मेरे को टपल वो करना है शो, तो वो इस तरीके से नहीं हो पाता है, तो ये भी एरर होगी हमारे लिए, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, डी ऑप्शन क्या कर रहा है कि नितिश कैन नॉट इंसर्ट 40 इनटू द टपल सिंस टपल्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, ये बात भी सही है वैसे, बट हमें देखिए ऑप्शन सी क्या दे रखा है। ये बेसिकली कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर जस्ट ज्वाइनिंग द 2 टपल। तो जो प्लस ऑपरेटर होता है, हम जानते हैं कि उसका कॉन्कैटिनेशन भी परफॉर्म करता है विद द सीक्वेंस टाइप वेरिएबल्स, प्रोवाइडेड बोथ साइड्स, जो प्लस है, प्लस के लेफ्ट और राइट में दोनों में सेम टाइप के सीक्वेंस टाइप होना चाहिए। मतलब जैसे t प्लस
तो इधर भी मतलब ये भी टपल होना चाहिए और ये भी हमारा टपल होना चाहिए, तभी ये दोनों कॉन्कैटिनेट होंगी। ओके, तो अब आप समझ ही गए होंगे आंसर क्या होगा इसका, सी। क्यों? क्योंकि इस टी में जो 10 20 30 है उसमें ये 40 कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, और कॉन्कैटिनेट होने के बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, 10 20 30 40, ये किससे आएगा रिजल्ट, ये इस स्टेटमेंट से आएगा। इस स्टेटमेंट से हमें विल गेट दिस रिजल्ट। नाउ दिस रिजल्ट वी आर अगेन रीअसाइनिंग, ओके, we are reassigning this result into t variable with the help of this assignment operator. So that's why this will not raise an error. हम ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें रीअसाइन कर सकता हूं, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता हूं, ये बात ध्यान रखिए। ओके, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर इसका सी होगा। अच्छा, नेक्स्ट इज सपोज द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट फाइल notes.txt, द वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्वाइट talking and begin doing. So what will be the output of the following Python code? So we have just opened the file notes.txt. Now f.seek29, तो लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में seek और tell के बारे में समझा था। तो seek क्या करता है, it will set the location of the file pointer, तो ये 29 बाइट्स पे आगे हमें पहुंचा देगा। तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15, मतलब आपको स्पेस भी काउंट करने हैं, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, 25 26 27 28 29, तो 29 कहाँ पे आ रहा है, स्पेस पे आ रहा है, ठीक है, क्वाइट से पहले आ रहा है ना। तो लाइक फिर उसके बाद हमने क्या किया, s इक्वल टू एफ डॉट रीड को कॉल किया है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें फिर मतलब हमने क्या किया, 29 के बाद वी आर जस्ट रीडिंग द कंटेंट, तो क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। ओके, तो मतलब कि यहाँ से ये फर्दर रीड क्या करता है, जहाँ पे भी फाइल पॉइंटर होगा उससे आगे क्या करेगा, रीडिंग परफॉर्म करेगा, है ना। तो मतलब यहाँ से ये पूरा कंटेंट रीड होगा, तो दैट मीन्स द वे टू गेट नहीं होगा क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग, द वे टू गेट, ये तो कुछ रिवर्सिंग हो रही है, तो द आंसर इज बी, ठीक है ना, क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग, ठीक है। तो बी इज द आंसर, याद रखिए। सी क्या करता है, सेट करता है, इसने 29 पे सेट किया है। अच्छा, काउंटिंग मैंने 1 से करी, ये बात भी ध्यान रखें, दिस इज फर्स्ट लोकेशन, ये 0 से नहीं होगी स्टार्टिंग, इसमें 1 से होगी काउंटिंग, और 29 तक हमने फाइल पॉइंटर को सेट किया, तो उस 29 से आगे रीडिंग करना शुरू करेगा, जहां पे फाइल पॉइंटर होगा ना उससे आगे रीडिंग शुरू होगी, उससे नेक्स्ट इंडेक्स मतलब लाइक एलिमेंट से रीडिंग शुरू होगी, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। तो एस एक स्ट्रिंग है जिसमें गुड मॉर्निंग एक स्ट्रिंग असाइन करी है। नाउ प्रिंट एस डॉट कैपिटलाइज कॉमा एस डॉट टाइटल कॉमा एंड में हम एक्सक्लेमेशन मार्क दे रहे हैं, तो दैट मीन्स जब ये स्टेटमेंट जब डेटा को प्रिंट कर देंगी उसके बाद क्या होगा, एंड मतलब लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, तो दैट मीन्स आंसर सी और डी में से कोई है, ए और बी नहीं होंगे क्योंकि उसमें एक्सक्लेमेशन नहीं आ रहा है। ओके, तो कैपिटलाइज क्या करता है, बेसिकली ये सेंटेंस के फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखेगा और बाकी सब स्मॉल कर देगा, ठीक है। और टाइटल क्या करता है, ये हर एक सेंटेंस के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा और सबको स्मॉल कर देगा, तो दैट मीन्स आंसर इज डी। आप ऐसे भी देख सकते हैं वैसे, क्योंकि ए बी सी में बीच में एक्सक्लेमेशन आ रहा है, ये तब आता है एक्सक्लेमेशन जब इस एंड की जगह हम सैप लिखते, सेपरेटर, तब एक्सक्लेमेशन आता बीच में। तो अब डायरेक्टली अगर आपको फंक्शन भी नहीं पता तो भी आप इजीली यू कैन आइडेंटिफाई दी करेक्ट ऑप्शन, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइक हाउ दिस कैपिटलाइज एंड टाइटल फंक्शन विल बिहेव। ओके, तो आंसर हमारा डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें 29, तो आइडेंटिफाई द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट, तो जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, फिर एक लूप लगाया है हमने, रेंज 4 क्या करेगा, रेंज 4 एक लिस्ट जनरेट करेगा, दैट इज 0 1 2 3,
ठीक है, 4 एक्सक्लूडेड होता है। एक्चुअली देखिए ये भी पेपर में मिस्टेक है, ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये इंडेंट नहीं हो रखी है, ये इंडेंट होकी होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट अपेंडिंग द एलिमेंट्स। तो देखिए क्या एलिमेंट अपेंड होंगे एल में। सबसे पहले आई हमारा होगा 0, ड्राई रन करें आप। आई में सबसे पहले क्या आएगा, आई विल रिसीव द वैल्यू फ्रॉम दिस लिस्ट, तो आई में आ गया 0। अब 0 से लूप के अंदर आएंगे, ये बोल रहा है अपेंड 2 इंटू आई प्लस 1। ओके, तो 2 इंटू आई इज 0, तो 2 इंटू 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 को हमने अपेंड कर दिया। फिर से लूप ऊपर चलेगा, आई में वैल्यू आएगी 1, एक एक करके आई क्या करेगा, जो लूप वेरिएबल है हमारा वो इस लिस्ट से, जो रेंज ने लिस्ट जनरेट करी है वहां से एलिमेंट्स को एक एक करके रीड करता रहेगा। तो आई में 1 आ गया है। अब ये बोलेगा अंदर आएगा लूप में, बॉडी में, अगेन ये अपेंड की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो दैट इज 2 इंटू आई, आई इज 1, तो 2 1 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो 3 अपेंड हो जाएगा। इसी तरीके से अब देखिए, अब आप नेचर समझ गए कि ऑड नंबर जनरेट कर रहा है। अब 2 आएगा तो 4, 4 प्लस 1 5, ठीक है, 2 के बाद फिर 3 आएगा, 3 6, 6 प्लस 1 7। तो एट लास्ट हमारे पास जो लिस्ट बनेगी वो लिस्ट हमारी 1 3 5 7 बनेगी। ठीक है, अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये लूप से बाहर है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर लूप के अंदर होती तो फिर आउटपुट हमारे इस तरीके से नहीं होते। ठीक है ना, तो दैट मीन्स ये जो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट है इट इज़ आउटसाइड दी लूप बॉडी। तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए हमने लास्ट काफ़ी बार ये बात डिस्कस करी है कि हमने स्टार्ट कुछ नहीं बताया, एंड कुछ नहीं बताया, बट हमने जंप को -1 कर दिया है। तो इस केस में ये क्या करता है, ये लिस्ट को रिवर्स में प्रिंट करेगा। ओके, क्या करेगा, लिस्ट को रिवर्स में रिटर्न करेगा, और हमें इट मीन्स आउटपुट क्या आएगा 7531, 7531। तो दैट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। ओके, तो आई होप कि आपको अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है वो सब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम यहीं तक करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।